Hello students, welcome back to your class of Financial Management. Till date, we have done the lectures of Unit 1 and Unit 2. In Unit 2 of Capital Budgeting, we have discussed about different investment decision-taking methods. They were discounting methods and non-discounting methods. So we have studied net present value, profitability index, IRR, and payback period, discounted payback period, and accounting rate of return. हमने इन सभी methods की theoretical analysis की है, and we have discussed about the theoretical part of these lectures. And then also we have done the numerical portions of these lectures. We discussed a few small numericals related to every method also. So, in this last lecture of Unit 2 of Capital Budgeting, today we will be discussing a numerical done on the basis of every method, every capital investment decision method we have studied. So, इस क्लास में हम आज डिस्कशन करेंगे एक न्यूमेरिकल पे जो कि एक तरीके से छोटी सी केस स्टडी है और उसमें हम ये डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि वो प्रोजेक्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस पे कैसे वर्क करता है. We have to understand that how that capital budgeting methods can be applied on any project. बिकॉज जब हमने कैपिटल बजटिंग मेथड्स की थ्योरेटिकल एनालिसिस की थी, हमने डिस्कशन किया था, तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि वाइल डूइंग द न्यूमेरिकल्स एंड वाइल डूइंग टेकिंग द डिसीजंस, और उस डिसीजन को करने से पहले हम जो भी प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं दैट हैज टू बी अनएम्बिगुअस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रोसीजर किसी एक प्रोजेक्ट पे अप्लाइड है और दूसरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं हो सकता. हम एक ही प्रोजेक्ट को हर मेथड से करके देखेंगे और ये जानेंगे कि कैसे वो डिफरेंट मेथड्स पे, वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मेथड्स पे खरा उतरता है. So let's start with the lecture. So here you can see the presentation on this capital budgeting numerical. My name is Dr. Ritu Singh and I'll be discussing this numerical with you. So the first part of this numerical is the question which we have to discuss here. Okay, so here you can see, you can take a reading at the your question also. You can see that the question says that a project requires initial investment of rupees 20,000. It will give future cash flows of rupees 8,000, 7,000, 6,000 and 5,000 for the next 4 years. Discount rate applied on the project is 10%. We have to calculate the feasibility of the project on different capital budgeting criteria. Okay. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है जो कि है आपकी 20,000 रुपीज. तो सी नॉट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 20,000, और जो हमें फ्यूचर कैश फ्लोज मिलने वाले हैं इस प्रोजेक्ट से वो है 8,000, 7,000, 6,000 एंड 5,000 फॉर नेक्स्ट 4 years रिस्पेक्टिवली. प्रोजेक्ट पे डिस्काउंट रेट लगाया गया है 10%. तो हमें डिफरेंट मेथड्स पे, कैपिटल बजटिंग क्राइटेरियाज पे इसकी फीजिबिलिटी चेक करनी है. So what are the different methods of feasibility we have studied? We have discussed in Unit 2. The first is net present value. सबसे पहले हमने पढ़ा था net present value. Then we studied profitability index. We studied internal rate of return and payback period, discounted payback period, and accounting rate of return. Okay, so we will move forward with the question and discuss the solution here. So solution, whenever जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यू हैव टू स्टार्ट बाय शोइंग द गिवन वैल्यूज इन द क्वेश्चन. सबसे पहले आपको गिवन वैल्यूज स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस solution, you can see you can enumerate all the given values.
सो व्हाट आर दी वैल्यूज गिवन? सी नॉट यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है 20,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 4 ईयर्स। डिस्काउंट रेट हमने कितना अप्लाई किया है 10%। एंड फ्यूचर कैश फ्लोज हमारे कितने हैं? फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो है 8,000, C2 second year cash flow is 7,000, third year cash flow is 6,000, and fourth year cash flow is 5,000. Okay, so अब हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट डिस्काउंट रेट इज 10%. So we will refer to the table of present value factor of lump sum at 10%. तो एट फर्स्ट ईयर पे हमारी वैल्यू आएगी 0.909, सेकेंड ईयर में वैल्यू आएगी 0.826, थर्ड ईयर में वैल्यू आएगी 0.751 एंड फोर्थ ईयर में वैल्यू आएगी हमारी 0.683. अब तक आप लोग सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते करते आपको शायद ये वैल्यूज भी याद हो गई. Okay, because in most of the questions, if you will observe, you will get the factor value of 10%. आप जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको 10% पे वैल्यूज अप्लाइड मिलेंगी ज्यादातर, और एग्जाम में भी 10% पे वैल्यू पे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं. अगर ये वैल्यूज प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाती हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका एग्जाम में समय बचेगा. So first of all we will make the table. हम सबसे पहले अपनी टेबल क्रिएट करेंगे. So in this table first column is of year 1 2 3 4. फर्स्ट ईयर ये ईयर का कॉलम क्रिएट करेंगे. फिर हम कैश इनफ्लो का कॉलम क्रिएट करेंगे. कैश इनफ्लो हमारा गिवन है पहले साल का 8,000, दूसरे साल का 7,000, फिर 6,000, फिर 5,000. एंड देन वी विल राइट डाउन द क्यूमुलेटिव वैल्यूज. तो हम क्यूमुलेटिव वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो हमें दिखाई देगा. क्यूमुलेटिव का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, आप स्टैट्स में कई बार इसे पढ़ चुके हैं, दैट हम हर साल के प्रॉफिट को अगले साल में एड अप करते जाएंगे, या हर साल के कैश फ्लो को अगले साल में एड अप करते जाएंगे. तो क्यूमुलेटिव वैल्यूज हमारी आएंगी 8,000, देन 8 + 7 = 15,000, देन 15 + 6 = 21,000 एंड 21 + 5 = 26,000. ओके, फिर इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 10%. तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फैक्टर हमारे पहले साल का है 0.909, दूसरे साल का है 0.826, तीसरे साल का फैक्टर है 0.751 एंड फोर्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है हमारी 0.683. नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स अप्लाई करके अपने कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. यानी कि हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट 10% को मल्टीप्लाई करेंगे कैश इनफ्लो से, जो कि सेकंड कॉलम में गिवन है. जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आएंगी पहले साल के लिए 7,272, दूसरे साल के लिए 5,782, तीसरे साल के लिए 4,506 और चौथे साल के लिए 3,450. ओके, यहाँ तक हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली. अब हम जब इनका टोटल एडिशन करेंगे, व्हेन वी ऐड all the present values of cash inflows, हमें आंसर मिलेगा 20,975. This is our cumulative answer. Okay, so in this slide you can see कि पहला कॉलम हमने बनाया ईयर का, दूसरा कॉलम हमने बनाया कैश इनफ्लो का, तीसरे कॉलम में हमने क्यूमुलेटिव वैल्यूज कैलकुलेट करनी, फिर हमने नेक्स्ट कॉलम में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ लम्प सम एट 10% लिखनी, एंड देन हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को उसकी करस्पॉन्डिंग कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गई, जो कि टोटल जिसका समेशन हमारा आएगा 20,975, जिसे हम कहेंगे सिग्मा सी. दिस विल बी आवर सिग्मा सी. तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा सी माइनस सी नॉट, यानी कि समेशन ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिडक्टेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो हमारा जो समेशन सी है, तो सिग्मा सी है जो हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया है, दैट इज 20,975.
एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 20,000. तो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी? 975. Okay, so we have a positive value of 975 rupees. So we will write the statement in our paper. हम अपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख देंगे that project is acceptable due to positive net present value. क्योंकि जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे डिस्कस किया था, if the value is positive then project is acceptable, if value is negative project is not acceptable, and if value is 0 project may or may not be acceptable. So here in this case, since the value is positive, we will accept the project. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हो जाता है. अब हमने ये सारी वैल्यूज अपनी टेबल में, इस आपका ये जो हमने टेबल बनाई है इस क्वेश्चन में, हमें सारी वैल्यूज यहाँ से मिलती जाएंगी और हम आगे के सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे. सो if you make the habit, if you create the habit of making this table while doing capital budgeting questions, your calculations becomes easy and accurate. So you can try this method. Because in this method, you don't have to do the calculations again and again to justify your answer. You can just use the values from this given table and put up in your formulas and get your correct answers. The next question, then the next part of this example question is the calculation of profitability index. So हमें profitability index का formula, we are aware, it is sigma C upon C naught, which means summation of all the present values of cash inflows divided by initial investment. तो हमें अपनी टेबल से याद है, जो हमने पिछली टेबल बनाई थी, हमें उससे याद है कि वैल्यू ऑफ समेशन C, sigma C is here 20,975 and initial investment value is 20,000. Okay, so profitability index will be 1.04875. Okay, and we have studied in profitability index. Profitability index का क्वेश्चन करते समय हमने ये डिस्कस किया है, if the profitability index ratio is more than 1, project is acceptable, is less than 1, project is unacceptable, and if is equals to 1, then project is may or may not be acceptable. Okay, so since the value here is more than 1, यहाँ पे वैल्यू हमें 1 से above मिल रही है, तो we will write the statement that project is acceptable due to profitability index is above 1. Profitability index 1 से ज्यादा है, तो profitability index के मेथड पे भी ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हो जाता है. Okay, so now we will move forward. Then the next point is internal rate of return. Internal rate of return का क्वेश्चन करने से पहले हम उसके एक एग्जाम्पल पे ध्यान दे देते हैं, which you need to know and need to understand. That is IRR is equals to L plus A upon A minus B into H minus L. हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसे बार बार डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्मूले को, और हमने पिछली क्लासेस, अपनी क्लासेस में भी और अपने पिछले लेक्चर्स में इस फॉर्मूले को इलैबोरेटली भी डिस्कस किया है. And in this formula of IRR, L means lower discount rate, H is higher discount rate, A is NPV at the lower discount rate, and B is NPV at the higher discount rate. हमें IRR की डेफिनेशन मालूम है, and IRR की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है. ये मैं अपनी क्लासेस में, अपने वीडियोस में आपको बार बार इटरेट कर चुकी हूँ और बार बार इसको पॉइंट आउट कर चुकी हूँ कि अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज IRR, give one line definition of IRR, internal rate of return, so you simply have to write that IRR, or we can say internal rate of return, is that rate of return is that discount rate at which net present value becomes 0. Okay, so I hope you have taken a good look at this formula here, and now we will start solving this IRR. IRR question is little bit hefty
I can say IR का क्वेश्चन थोड़ा सा hefty रहता है, थोड़ा सा lengthy रहता है. So while doing the question, you need to keep a patience. Don't get nervous. Don't get hasty. Just keep your mind cool and do your questions. आप अपने questions लगाते रहिए and बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है. आप अगर आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, उसको प्रॉपर सही फॉर्मूले के साथ अप्लाई करते रहेंगे, तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो ही विल बी certain that you understand the formula of IRR, concept of IRR, and you have tried to solve the question accordingly. So since in IRR method we apply hit and trial method, because there is no certain formula to find out the answer of internal rate of return. तो हम उसमें हेड एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं एंड उसके बेसिस पे हमने आंसर्स कैलकुलेट करते हैं. तो जो इससे पहले हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है 10% पे, तो वी आर अवेयर दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 975 पॉजिटिव. हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में 975 आई है. इसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट एनपीवी के बेसिस पे एक्सेप्टेबल है. ओके, फिर IRR कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? What the trick which we are going to use here is that we will calculate the net present value at 11%. Because IRR की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि IRR वो रेट ऑफ रिटर्न है जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाती है. सो 10% पे अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो उस जो हमारी 0 वैल्यू है वो 10% से अबव पे ही आएगी. ओके, सो वी विल कैलकुलेट the net present value at 11%. We'll just simply put it in the formula of NPV, and this, the formula which is shown on the screen, is the calculator method जो हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं. हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन में भी डिस्कस की थी. सो होपफुली आपको रिमेम्बर होगी. अगर थोड़ा सा भी डाउट है, you can go back to the lectures of time value of money, net present value. तो आप वहां से इस फॉर्मूले को दोबारा से brush up कर सकते हैं. So here we see that at 11% we are going to calculate the net present value. Net present value हमने यहाँ पे equation लिख ली, 8,000 divided by 1.11 first year, then 7,000 divided by 1.11 power 2 for second year, then 6,000 divided by 1.11 power 3, and then 5,000 divided by 1.11 power 4. And this whole equation is deducted by C naught, यानी कि initial investment. When we solve this question via this method, we found out that net present value at 11% is in positive of 568. Okay, so here we can see that at 568, at 11% your positive value is 568. पॉजिटिव में यहाँ पे भी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है एंड वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में 568. और IRR का फॉर्मूला कहता है कि हमें वो रेट ऑफ रिटर्न चाहिए जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाए. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि 1% के इंक्रीज पे जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 407 रुपीज डाउन जा रही है. It is declining here. So from 10 to 11%, then your value is deducted by 407 rupees. तो हमें ये समझ में आता है कि 1% के राइज पे 407 रुपीज वैल्यू डिक्रीज कर रही है. तो हमें एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट वी हैव टू मूव 2% forward in order to calculate the IRR. Okay. So we have done the question further also. फिर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 13% पे कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें दिख गया है कि 1% के इंक्रीज पे हमारी वैल्यू 400 रुपए कम हो रही है. So when we went to calculate the net present value at 13%. Okay. Now the equation will be 8,000 divided by 1.13 power 1 पहले साल के लिए, then 7,000 divided by 1.13 power 2 second year के लिए, then 6,000 divided by 1.13 power 3 थर्ड ईयर के लिए, एंड फोर्थ ईयर के लिए 5,000 डिवाइडेड बाय 1.13 पावर 4. ओके, एंड दिस वैल्यू इज डिडक्टेड बाय सी डॉट, यानी कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ओके, सो हियर यू कैन सी हमने इस पूरी वैल्यू का समेशन किया और उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया.
सॉरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ रहा है एनपीवी एट 13% में हमारा आंसर आ रहा है नेगेटिव में 250. So now we have that at 13% net present value for this project is negative. So हमें ग्राफिकल मेथड से पता है, वी आर अवेयर दैट कि जो जीरो होता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के बीच में लाई करता है. सो नाउ यू नो कि अगर 11% पे हमारी वैल्यू 568 पॉजिटिव में है और 13% पे हमारी वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव में 215 रुपीज है, तो जो एनपीवी जीरो होगा वो 11 से 13% के बीच में ही किसी वैल्यू पर होगा. So now we will take these values and put up in the formula. So here the formula is visible to you. IRR is equals to L plus A upon A minus B into H minus N. Okay. So L is the lower discount rate, H is the higher discount rate, A is the NPV at lower discount rate, and B is the NPV at higher discount rate. तो हमारा लोअर डिस्काउंट रेट क्या है यहाँ पे 11%, हायर डिस्काउंट रेट क्या है 13%. 11% पे हमारी एनपीवी है 568 और 13% पे हमारी एनपीवी है माइनस में 250. तो हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख देंगे और जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो -215 आपका माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा. तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 11 + 568 अपॉन 783 इंटू 2. और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 12.25%. ओके. So here you can see that IRR, internal rate of return, for this project is 12.45%. Okay. So here you must understand कि जब हम IRR पढ़ रहे थे, जब हम IRR पे डिस्कशन कर रहे थे तो हमने वहां की उसके एक्सेप्टेबिलिटी रूल्स में क्या पढ़ा था. In acceptability rules we studied that if IRR is more than the discount rate, project is acceptable. IRR is less than discount rate, project is not acceptable. तो यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में गिवन है दैट वाज 10% और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% से ज्यादा आ रहा है और अगर ये इन्वेस्टर्स के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को पूरा कर रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हो जाएगा. ओके. सो दिस वाज फॉर IRR. तो यहाँ पे हमने डिस्काउंटिंग मेथड से के 3 मेथड डिस्कस कर लिए. एनपीवी डिस्कस किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आ रही है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हो जा रहा है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को डिस्कस किया, वहां पे हमारी वैल्यू 1 से अबव आ रही है तो हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हो जा रहा है. और फिर हमने IRR की वैल्यू कैलकुलेट की, दैट इज 12.45%. सो यहाँ पे भी हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हो जा रहा है. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, जिसके अंदर आपके आते हैं पेबैक पीरियड, accounting rate of return and discounted payback period. So here on the screen payback period का फॉर्मूला आपके लिए विजिबल है. So here you can see in this formula, और ये पेबैक पीरियड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में भी और अपने वीडियोस में भी. तो वहां पे हमने पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, completed years plus remaining cash flow upon next year operating savings into 12 months. ओके. तो क्योंकि अब ये फॉर्मूला हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वी आर गेटिंग डिफरेंट कैश फ्लोज एवरी ईयर. और जब हम पेबैक पीरियड पढ़ रहे थे, हमने डिस्कशन कर रहे थे पेबैक पीरियड पे, तो जब हमने वहां पे वो कंडीशन पढ़ी थी कि व्हेन cash inflows are going to be different every year, then this formula will be applied. And the formula is as follows: payback period is equals to completed years plus remaining cash flow upon next year operating savings into 12 months. Okay. So this question may now we have this formula. Before putting these values in the formula, we will go back to the table here. We will go back to the table and see our calculations. Okay. So in this table which we have made, जो हमने सबसे पहले टेबल बनाई थी, इसमें 3 कॉलम थे. पहले साल में 8,000 कैश इनफ्लो, दूसरे साल में 7,000, तीसरे साल में 6,000, चौथे साल में 5,000 कैश इनफ्लो. ओके. हम जब इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,000, then 15,000, then 21,000 and 26,000.
अब हमें मालूम है कि कैश इनफ्लो हमारा जो हमारा कैश आउटफ्लो है यानी कि जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 20,000 और पे बैक पीरियड का डिफिनीशन क्या होती है द टाइम टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोजेक्ट टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। जितने समय में हम अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेते हैं उसे हम पे बैक पीरियड कहते हैं। ओके तो इस टेबल में हमें ये साफ नजर आ रहा है कि पहले साल में हमने 8,000 रुपये रिकवर कर लिए, दूसरे साल में हमने टोटल 15,000 रुपये रिकवर कर लिए। अब हम 20,000 में से अगर 15,000 रिकवर हो गए सेकेंड ईयर में तो अब हमारे पास बचते हैं 5,000 रुपीज टू रिकवरी। ओके और अगले साल की जो ऑपरेटिंग सेविंग्स है जो कैश इनफ्लो है दैट इज 6,000। ओके so now going back to the formula of payback period. So here you can see that completed years plus remaining cash flows upon next year operating savings into 12,000. तो completed years कितने हैं 2 years. Okay we have completed 2 years. ये 2 साल में हमने 15,000 रुपए रिकवर कर लिए हैं। 20,000 में से 15,000 अगर रिकवर हो गए तो कितने बचे 5,000 रुपीज आर रिमेनिंग टू रिकवर। थर्ड ईयर की जो ऑपरेटिंग सेविंग्स है जो हमें मिल रहे हैं कैश इनफ्लो मिल रहा है दैट इज 6,000 into 12। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 years and 10 months। ओके सो द पेबैक पीरियड फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 years and 10 months। अब ये डिपेंड करता है कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसका स्टैंडर्ड पीरियड क्या है। So whatever standard period in your question is given, you can decide if the project is acceptable or not on the basis of payback period. तो अगर फॉर assumption हम ये कहें कि कंपनी का स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड 3 years है और आपका पेबैक पीरियड का आंसर 2 year and 10 months आ रहा है दैट मीन्स योर प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल क्योंकि आप 3 साल से पहले अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर ले रहे हैं। बट अगर प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का जो स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड 2 years है और आपका आंसर 2 years 10 months आ रहा है दैट मीन्स आपको ज्यादा समय लग रहा है कंपनी स्टैंडर्ड से अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। तो इस केस में आपका प्रोजेक्ट अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो जनरली अगर एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आएंगे पेबैक पीरियड से तो उसमें इन दैट क्वेश्चंस यू विल नॉट फाइंड द स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड जनरली, you only have to calculate the payback period. But in case अगर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये कंपनी का स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड इतना है तो उससे कंपेयर करके आप रिलेटिव आंसर लिख सकते हैं दैट प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल। तो पेबैक पीरियड की थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ते समय डिस्कस करते समय हमने एक्सेप्टेंस रूल में डिस्कस किया है दैट the payback period which we get on any project is compared to given standard payback period of the organization. Okay, so in this question payback period is 2 years and 10 months. Now the next part is accounting rate of return. Accounting rate of return is an important portion and it also decides that what profit is going to show in your books of account. तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कैपिटल बजटिंग मेथड्स को डिसाइड करते समय। ओके सो इन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमें जो फॉर्मूला हमें याद है हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज ARR is equals to average income upon average investment into 100। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला कितना है एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट into 100 and average investment is equals to I naught plus IN upon 2 जहां पे I naught is the initial investment, sorry IN is a scrap value which is 0 since no scrap value or final value of the investment is not given तो हम इसे 0 ही assume करेंगे। otherwise कुछ क्वेश्चन में आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी तो आप उसको यहाँ पुट अप करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन है तो हम उसे 0 मान के चलेंगे यानी कि IN हम 0 मान के चलेंगे अपॉन 2। सो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज।
सो वी आर, हमें पता है कि हमारे ARR के फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है एवरेज इन्वेस्टमेंट की, वो हमने डिटरमाइन कर ली है, विच इज 10,000 रुपीज. नेक्स्ट स्टेप यू विल राइट सिंस स्क्रैप वैल्यू 0, हम ये मान के चल रहे हैं कि फाइनल स्क्रैप वैल्यू हमारी 0 है, नील है, इसका मतलब कि हमारा फुल डेप्रिसिएशन हुआ है हमारे प्रोजेक्ट पे, यानी कि पूरी 20,000 की वैल्यू 0 हो गई है, स्क्रैप वैल्यू 0 हो गई है, तो फुल डेप्रिसिएशन हुआ है. So we will simply calculate the average depreciation, and it will be simply calculated as 20,000 divided by 4 years, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो 4 years की है, and 20,000 is the initial investment. So average depreciation हमारा कितना आ गया 5,000 per year, यानी कि हर साल आपका 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू. Now you will calculate the average EBITDA. What is EBITDA? Earning before depreciation, interest and tax. तो हमें पहले साल में कैश इनकम मिल रहा है 8,000, दूसरे साल में 7,000, तीसरे साल में 6,000 एंड चौथे साल में 5,000. So we'll calculate the average EBITDA, that is earning before interest, earning before depreciation, interest and tax. And we will divide it by 4 because we have 4 values and 4 years of life cycle of the project. तो हमारा आंसर आ जाएगा 26,000 divided by 4 is equals to 6,500 per year. तो एवरेज अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारी यहाँ पे कितनी है 6,500. ओके, देन वी विल कैलकुलेट द एवरेज इनकम. एवरेज इनकम का फॉर्मूला है हमारा EBITDA माइनस डेप्रिसिएशन. तो हम पिछली स्लाइड में EBITDA कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज 6,500, एंड डेप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 5,000. So we will simply put up the values. 6,500 minus 5,000, तो हमारी एवरेज इनकम कितनी आ गई 1,500. Our average income for the project is 1,500. और हमारा फॉर्मूला क्या है ARR का? ARR is equals to average income upon average investment into 100. एवरेज इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10,000, एवरेज इनकम भी हमने कैलकुलेट कर लिया 1,500, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 15%. सो नाउ द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस प्रोजेक्ट इज 15%. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पढ़ते समय भी उसके एक्सेप्टेंस रूल में हमने पढ़ा था कि एवरी कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज अ स्टैंडर्ड ARR. जिस तरीके से पेबैक पीरियड में एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेटअप होती है, उसी तरह ARR में भी स्टैंडर्ड वैल्यू सेटअप होती है. तो अगर आपके क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड ARR दे रखी है तो आप उससे कंपेयर करके अपने आंसर लिख सकते हैं. अदरवाइज योर सिंपल आंसर इज दैट ARR is 15%. सो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग लेट अस अज्यूम कि कंपनी का स्टैंडर्ड ARR, जो उनका स्टैंडर्ड सेटअप है, उसके हिसाब से ARR 10% आना चाहिए. अब क्योंकि आपका इस क्वेश्चन में अगर ARR 15% आ रहा है तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो 10% से ज्यादा है. बट अगर यही क्वेश्चन में ये लिखा होता कि कंपनी का स्टैंडर्ड ARR 20% है और आपका आंसर 15% आ रहा है, तो आप उसे इस प्रोजेक्ट को ARR के बेसिस पर रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये कंपनी स्टैंडर्ड्स को एक्सीड नहीं कर रहा है. ओके, नाउ the last point, the last formula which we need to discuss is discounted payback period. Okay, so in discounted payback period का formula भी आपका payback period जैसा ही रहेगा, and the same formula of unequal cash flows is applied here, which is completed years plus required cash flow in upon next year operating savings into 12. तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पढ़ते समय हमने ये डिस्कस किया था कि इन दिस डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ आवर कैश फ्लोज. बट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की तब भी एक लिमिटेशन ये रह जाती है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होने के बाद के जो कैश फ्लोज होते हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं. ओके, सो हियर इज द टेबल अगेन फॉर यू. यू कैन सी हियर कि हमने यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की वैल्यू कैलकुलेट की है, एंड यू कैन सी द वैल्यूज हियर. प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, विच वाज पहले साल के लिए हमारी आई थी 7,272, दूसरे साल के लिए 5,782, थर्ड ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू हमारी आई थी 4,506, और फोर्थ ईयर के लिए हमारी वैल्यू आई थी 3,450.
जब हम इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो पहले साल में आंसर रहेगा 7,272। सेकेंड ईयर में हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू हो जाएगी 13,054। थर्ड ईयर में वैल्यू हो जाएगी 17,560 एंड फोर्थ ईयर में आके क्यूमुलेटिव वैल्यू होगी 20,975। अब हमारे क्वेश्चन में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 20,000। सो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हमें ये डिस्कस करना है, कैलकुलेट करना है कि हमारा टोटल रिकवरी ऑफ 20,000 रुपीज कब हो रहा है। So we can see here in this table that at third year we are able to recover 17,560 rupees. तीसरे साल में हम 17,560 रुपए रिकवर कर चुके हैं। इसके बाद अब हमें 20,000 तक अमाउंट लाना है। So here जब हम 20,000 से 17,560 को माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड कैश फ्लो अभी भी हमारा 2,440 रुपीज रिमेनिंग है रिकवर करने के लिए। एंड नेक्स्ट ईयर ऑपरेटिंग सेविंग्स हमारी क्या है, फोर्थ ईयर की ऑपरेटिंग सेविंग्स कितनी है 3,450। सो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। 3 साल टोटल 3 साल तो हमें लग रहे हैं 17,560 रुपए रिकवर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 2,440 रुपीज टू रिकवर। नेक्स्ट ईयर ऑपरेटिंग सेविंग्स आपकी 3,415 है मल्टीप्लाइड बाय 12 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,000 योर आंसर विल बी 3 years plus 8.57 months. So you can write, आप चाहे तो एग्जैक्ट यही आंसर लिख दीजिए दैट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट इज 3 years and 8.57 months, और आप इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड has the time of 3 years and 9 months. ओके क्योंकि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हमने प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट की है, प्रेजेंट वैल्यूज को कंसीडर किया है, तो इसकी वैल्यू हमारे नॉर्मल पेबैक पीरियड से ज्यादा ही आएगी। सो these are all the methods. Let's go with the revision also. So in the question we'll go back to the question from the very starting, that the project requires initial investment of rupees 20,000. It will give future cash flows of 8,000, 7,000, 6,000 and 5,000 for next 4 years with discount rate applied at 10%, and we have to calculate the different feasibility factors on the basis of different capital budgeting decisions. तो हमने जो सबसे पहला मेथड पढ़ा था NPV, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 975। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे भी हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है एट द वैल्यू ऑफ 1.04875। IRR की वैल्यू हमारी आई है 12.45%। Payback period is 2 years and 10 months. Accounting rate of return is 15% and discounted payback period is 3 years and 8 months. Okay. So I hope कि अब ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल न्यूमेरिकल डिस्कस करने के बाद आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। इससे पहले हम अपने पिछले लेक्चर्स में कई सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR, सबसे हम अपना थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ चुके हैं और हम न्यूमेरिकल्स भी लगा चुके हैं। एंड जो हमने क्लासरूम सेशंस किए हैं हमने वहां पे भी कई सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए हैं। सो आई होप दैट you have understood this numerical of capital budgeting decisions, and even after that if you have some questions you can put up your questions in Google Classroom, you can put up your questions on my mail ID, and you can also ask a question in class also. I will be happy to answer your queries and to make this chapter more understandable to you. So thank you so much students listening patiently. Have a nice day ahead and please log in for the next lecture also. Thank you students.